Welcome to IPEC EE classes. Today we discuss that is Norton's theorem. And previous part, that part 6, we discussed that is Thevenin's theorem. The DC network theorem, there are three: Thevenin, Norton and superposition. The first already discussed, that is Thevenin, and today we discuss the Norton's theorem. Okay? The Norton's theorem. Okay, so what is the Norton's theorem? That means what is the statement of Norton's theorem? First we draw the basic block diagram. This is your linear bilateral active network. With output terminal A and B. This is linear bilateral active, जिसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, रेसिस्टेंस होगा, बिकॉज दिस इज डीसी. इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं रहेगा. ठीक है. दिस बाइलिनियर नेटवर्क with output terminal can be replaced by single current source IN. I मतलब current, N मतलब means Norton current, that is Norton equivalent current, in parallel with single resistance RN. That is RN same as the RTH. जैसे RN होता था, RTH होता था हमारा थेवेनिन में, उसी तरह RTH होगा. And load are connected across output terminal A and B. This is your RL. And to find the load current IL. From this diagram, here total current is given in diagram, that is IN. This is your IN. And divided in two parts. We apply the current division rule. In this circuit, we apply the current division rule. So when find the current in load, that is IL equal to, according to current division rule, total current, that is IN, into इसका अपोजिट कौन सा है? RN, डिवाइड बाय सम ऑफ दिस. क्योंकि करंट डिवीजन का रूल होता है जिसमें हम लोग करंट, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें हम करंट निकालेंगे तो टोटल करंट इंटू इसमें निकालने थे इसका अपोजिट रेसिस्टेंस RN डिवाइड बाय RN प्लस RL. ओके, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम? नॉर्टन्स थ्योरम सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर लिखेंगे. नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी linear bilateral active network with output terminal A and B can be replaced by single current source IN in parallel with single resistance RN, and load are connected across output terminal A and B to find the load current. That means यदि हम लोग प्रीवियस थ्योरम से इसको थोड़ा सा दोनों में देखें तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस? दिस मीन दैट मीन्स वो वोल्टेज सोर्स के साथ रेसिस्टेंस किस में था? सीरीज में. दैट मीन्स इंटरनल इज द वोल्टेज सोर्स ऑफ दिस लीनियर बाइलेटरल एंड सीरीज विद द इंटरनल रेसिस्टेंस RTH, दैट मीन इक्विवेलेंट ऑफ दिस नेटवर्क. बट हियर चेंज टू वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स. वी नो दैट वोल्टेज सोर्स में यदि कोई भी सर्किट हम लोगों को गिवन रहता है, ये वोल्टेज सोर्स है, दैट इज VTH गिवन था, और यहां पे हमारा RTH गिवन था, और दिस इज AB टर्मिनल. इसको करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? VTH बाय RTH, दैट इज IN. एंड जो रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ करंट सोर्स के साथ किस में आ जाता था? पैरेलल में. दैट मीन्स थेवेनिन इज द वोल्टेज सोर्स एंड नॉर्टन इज द करंट सोर्स. दैट मीन ड्यूअल प्रॉपर्टी है. यदि एक ये हम लोगों को पता है तो ये निकाल सकते हैं, थेवेनिन निकाल सकते हैं. यदि थेवेनिन पता है तो वी कैन डिटरमाइन द नॉर्टन्स. दैट मीन्स दिस इज आल्सो नोन एज ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ थेवेनिन इज नॉर्टन एंड नॉर्टन ऑफ ड्यूअल प्रॉपर्टी इज थेवेनिन. Okay, the statement again repeat.
Norton's theorem states that in any linear bilateral active network with output terminal A and B can be replaced by single current source IN in parallel with single resistance Rn, and load are connected across output terminal A and B to find the load current, that is IL equal to IN, that is Norton current, into Norton equivalent resistance Rn divided by Rn plus Rn by using current division. ठीक है, तो ये हमारा था स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम. बिकॉज दिस इज योर इंटरनल पार्ट. ऑलरेडी हमने थेवेनिन में भी बताया था कि दिस इज इंटरनल पार्ट एंड दिस इज योर एक्सटर्नल पार्ट. ओके, दैट मीन्स ये यदि वोल्टेज सोर्स पता है तो करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो ये पार्ट है, करंट सोर्स पता है तो इसमें चेंज करेंगे. दैट मीन्स ड्यूअल है. ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्टन इज थेवेनिन एंड थेवेनिन आउट ऑफ ड्यूअल इज नॉर्टन. ओके, to write on the statement, the Norton's theorem states that a statement STATEMENT statement. The Norton's theorem states that in any linear bilateral active network with output terminal AB, A dash B, with output terminal AB can be replaced by single current source IN, that is not an equivalent current, in parallel with single resistance Rn, that is not an equivalent resistance, parallel with single resistance Rn, and load are connected across output terminal AB to find load current, that is IL. IL equal to IN into Rn divided by Rn plus Rn. So this is your statement of Norton's theorem. Next, how to find Norton current IN and Rn. The next steps for solving the problems on Norton's theorem. Whenever we know the steps, then there is no problem for find the load current. Okay? तो पहले हमने बताया था कि जैसे ही करंट बोलेगा जिस रेसिस्टेंस में फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, लोड है. दैट मीन्स लोड रेसिस्टेंस. तो स्टेप फर्स्ट में रिमूव द लोड रेसिस्टेंस RL. फर्स्ट स्टेप में रिमूव द लोड रेसिस्टेंस RL and mark terminal A and B. If not marked and sorted AB. एक्स्ट्रा इसमें लगा दिए. थेवेनिन में क्या करते थे, रिमूव द लोड रेसिस्टेंस, मार्क टर्मिनल AB. इफ नॉट मार्क, यहां एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, एंड सॉर्टेड AB. A और B को क्या करेंगे हम लोग, सॉर्ट कर देंगे. सॉर्ट मतलब सपोज ये हमारा A और B टर्मिनल दिए, A एंड B टर्मिनल. सॉर्टेड मींस ऐसे सटा दिए, ऐसे. Okay, again repeat step first. Remove the load resistance RL, mark terminal AB, A and B. If not marked, and sorted AB. Sorted AB. That means sort कर दिए AB. Step 2 में
to find the short circuit current. That means to find the short circuit current in terminal AB. जो फर्स्ट स्टेप में हमने शॉर्ट किया, स्टेप 2 में टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट इन टर्मिनल AB by using KVL and KCL. And step 3 में to find the open circuit resistance across terminal A and B when all energy sources are deactive. That means voltage is short circuit and current is open. That means same as the Thevenin equivalent resistance. So you determine the Rn. That means Rn is the same as the Thevenin equivalent resistance RTH. ओके जैसे हम लोग थेवेनिन में आरटीएच निकाल देते वैसे हम लोग आरएन निकाल लेंगे. दैट इज स्टेप नंबर 3. ओके एंड स्टेप 4 में ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. तो दिस इज योर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. आईएन के साथ आरएन. आईएन हमने स्टेप 2 में फाइंड किया, आरएन स्टेप 3 में. एंड स्टेप 4 में ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज योर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आएगा. And step 5 में that is load current. To find the load current, IL equal to IN into RN divided by RN plus RN. Is it clear? Then write down the steps for solving the problems on Norton's theorem. Steps for solving the problems on Norton's theorem. The steps for solving problems on Norton's theorem. Next step first, STEP first. Okay. In a step first, write down step first. Remove the load resistance. Remove the load resistance RL. Mark terminal AB. Mark terminal AB. If not mark. If not mark. And sorted AB. Sorted AB. दैट मीन शॉर्ट हम लोग पहले बता चुके हैं कि सपोज ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल, तो इसको शॉर्ट कर दिया. शॉर्टेड ए बी, शॉर्ट सर्किट. स्टेप 2 में STEP सेकेंड. टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट. टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट current, short circuit current IN in terminal AB by using KVL and KCL or any other convenient method. डायरेक्ट भी हम लोग करंट डिवीजन रूल से any other method that is I equal to V by R equivalent, किसी भी मेथड से मेन है टू फाइंड द करंट इन IN, दैट इज ए बी टर्मिनल. ओके स्टेप 3 में STEP थर्ड. टू फाइंड द ओपन सर्किट रेसिस्टेंस. टू फाइंड द ओपन सर्किट रेसिस्टेंस R and that is RAB. To find the open circuit resistance RN or RAB, that is RTH, across terminal AB
when all energy source are deactive. 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 Deactive means inoperative. Deactive, that means voltage source is short circuit and current source is ओपन सर्किट. करंट सोर्स को हम लोग ओपन कर देंगे, वोल्टेज को शॉर्ट कर, दैट मीन इनऑपरेटिव कंडीशन में ले आएंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, STEP 4. Draw the Norton equivalent circuit. Norton equivalent circuit diagram. Okay, so draw the Norton equivalent circuit diagram. Already determine the node current, that is Norton current IN, and parallel with single resistance RN, and load are connected across output terminal AB, RN. And step 5th में STEP 5th, to find the load current. To find the load current IL, here IL. Okay, so from this diagram IL equal to total current IN into इसका opposite RN divided by RN plus RN. So this is your load current. Okay, whenever you know the steps for solving the problems on Norton's theorem, that is your 5 steps, then you find the current, that is load current, in any question. Okay, write on the first question. Find the current in 10 ohms resistance. Find the current in 10 ohms resistance. Example first. Find the current in 10 ohms by Norton's theorem. Norton's theorem. Okay. Here given 5 ohms, 15, 10 ohms, this is your 100 volt, and this is your 50 volt battery. Okay, so find the current in 10 ohms. Load same, so that is current is same. अब मेथड कोई भी अप्लाई लो, KVL, KCL, मैश, नोडल, लूप एनालिसिस, दैट इज थेवेनिन, नॉर्टन. वैल्यू क्या आएगा? करंट लोड सेम तो करंट इज सेम. ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले सॉल्यूशन. स्टेप फर्स्ट, STEP फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप. रिमूव द लोड रेसिस्टेंस. तो रिमूव किसको करना है? 10 ohms को, बिकॉज 10 ohms इज योर लोड, बिकॉज करंट किसमें फाइंड करना है? 10 ohms में. तो रिमूव 10 ohms, मार्क टर्मिनल AB. रिमूव 10 ohms, मार्क करेंगे टर्मिनल AB. 10 ohms, 5, 15,
A B and 100 bold and sorted A B. सॉर्टेड मतलब 2-3 बार ऐसे डार्क कर देंगे तो ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। नेम इसको हम लोग दे देंगे, इसमें नॉर्टन करेंट दैट इज शॉर्ट सर्किट का IN फाइंड करना है, ठीक है। बाय यूजिंग KVL एंड KCL। फर्स्ट हमने मार्क कर दिया टर्मिनल, शॉर्ट भी कर दिया। स्टेप 2 में टू फाइंड द नॉर्टन करंट IN इन टर्मिनल AB बाय यूजिंग KVL एंड KCL। स्टेप 2 हम लोग कर रहे हैं अभी। अब STEP सेकेंड, टू फाइंड द नॉर्टन करंट, टू फाइंड IN, टू फाइंड IN बाय यूजिंग KVL एंड KCL। यहाँ पे एक लूप हमारा ये हो गया, इसका नाम दे देंगे, ये तो पता ही है हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे दे देंगे I1 और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। फर्स्ट लूप में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लूप फर्स्ट, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, तो 50 -5 I1 यहां से चले 50, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो 50, जैसे रेसिस्टेंस आएगा -5, करंट कौन सा हमारे हाथ में अभी I1, यहां से ऐसे पहुंच गए n इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। सिमिलरली अप्लाई द KVL इन लूप 2, लूप 2 कहीं से भी चलेंगे, यहां से सपोज इस कॉर्नर से, यहां से कहीं से भी चल सकते हैं। सपोज यहां से चले तो लिखेंगे -15 I2 -100 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है +2 माइनस की तरफ, और यहां से ऐसे पहुंच गए। हियर I2 इक्वल टू -6.66 एम्पियर। ओके, जैसे हमने दोनों लूप में अप्लाई कर लिया तो I1 भी फाइंड कर लिया, I2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IN? मिडिल ब्रांच है, दैट मीन्स IN इक्वल टू I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, ठीक है। तो IN इक्वल टू फ्रॉम दिस डायग्राम IN इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि इसमें दोनों करंट जा रहा है I1 और I2, वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, नेग्लिजिबल। ओके, तो I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू कितना है 10, माइनस I2 की वैल्यू -6.66, दैट इज 16.66 एम्पियर। तो दिस इज योर IN। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में STEP थर्ड, to find the open circuit resistance, that is same as the RTS, to find RN open circuit resistance across terminal AB, that is RAB, that is same as the RTH। तो क्या करते थे RTH फाइंड करने के लिए हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट कर दिए, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, and this is your A terminal and this is your B terminal, और इसको भी शॉर्ट कर दिया। What is the resistance across terminal A and B? तो ये पता ही है कि हम लोग जैसी रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे उस पॉइंट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे एंड होल्ड इट। तो टिल्ट मीन्स A को ऊपर, जैसी टिल्ट करेंगे तो A ऊपर, B नीचे, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15। अब इसको जैसे हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे जैसे A और B को पकड़ेंगे तो दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है। दैट मीन्स Rn इक्वल टू 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 प्लस 5, 15 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 प्लस 5, 15 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 plus 15, that is 3.75. This is Rn, that is RAB। Step 4,
Norton equivalent circuit diagram. Norton equivalent circuit diagram. Already we get the IN, that is IN equal to 16.66 ampere and RN equal to 3.75 ohms, and we know the load, that is 10 ohms. Here is the RN. What is the value of IL? Okay, the step fifth में IL equal to step fifth as TEP fifth to find load current, that means 10 ohms में IL, ठीक है, लोड करंट IL किसमें 10 ohms में. तो फ्रॉम दिस डायग्राम IL इक्वल टू टोटल करंट, दैट इज IN, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं, डिवाइड इनटू RN डिवाइड बाय RN प्लस RL. IN की वैल्यू 16.66 into RN, that is 3.75 divided by 3.75 plus 10, that is equal to 4.54 ampere. This is your answer. अब फाइनल लिख सकते हैं I 10 ohms equal to 4.54 ampere. ब्लॉक में लिखेंगे, देन लिखेंगे आंसर. Okay, so this is your next example number 2. Find the current in 12 ohms resistance by Norton's theorem. That means find the current in 12 ohms. Okay, 6 ohms, 7, 4 ohms. Okay, तो स्टेप फर्स्ट से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट सेशन में मार्क हेटर में लोडिंग A and B ऑलरेडी. रिमूव द लोड रेसिस्टेंस, दैट मीन्स 12 ओम को रिमूव करेंगे. ठीक है, 6, 7, 4 -2 plus 30 volt, and here A and B remove, and shorted AB, शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट मतलब सटा दीजिए, और यहाँ पे IN नाम शॉर्ट सर्किट करें, दैट इज IN. स्टेप 2 में अप्लाई द KVL, फाइंड द IN बाय यूजिंग KVL. तो यहाँ पे एक लूप ले लिए, इसका नाम दे देंगे I1, यहाँ पे दूसरा दैट इज I2. इन लूप फर्स्ट अप्लाई KVL. यहां से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 30 माइनस 6I1 माइनस 4I1 माइनस 4, जैसी जाए माइनस 4I1 माइनस I2. इस लूप में चलेंगे तो I1 माइनस I2. यहां पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0. रीराइट दिस इक्वेशन. 6 प्लस 4 माइनस 10I1 माइनस प्लस 4I2 प्लस 30 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन को, और इस टर्म को इधर ले आते हैं. तो कितना हो जाएगा, 5I1 माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू 50. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. इन अप्लाई KVL इन लूप 2 में अप्लाई करेंगे. ठीक है, आप लिखेंगे जरूर कि अप्लाई KVL इन लूप 2. हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो समझ जाए. अप्लाई KVL लूप फर्स्ट, लूप 2 में चलेंगे. यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 4I2 माइनस I1, क्योंकि सेकेंड लूप में चल रहे हैं, माइनस 7I2 इक्वल टू 0. देखो यहां से ऐसे चले, यहां से ऐसे पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0. रीराइट दिस इक्वेशन. तो माइनस 4I1 प्लस 4I1 और माइनस 4 प्लस 7 दैट इज 11
I2 equal to 0. This is equation number 2 from equation first and second. ठीक है, इस कैलकुलेटर को हाथ में लेंगे, 4 बार शिफ्ट को दबाएंगे, इक्वेशन लिख के आ गया, 1 दबाएंगे, अननोन कितने हमारे पास 2, तो 2 दबा देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 1 का 5, तो 5 दबा देंगे। -2 इक्वल टू कितना है 15, फिर दूसरा वाला इक्वेशन में 4, फिर कितना है -11 एंड नेक्स्ट इक्वल टू क्या है 0। तो I1 इक्वल टू वैल्यू आ गया हमारा 3.51 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 1.276 एम्पियर। दिस इज योर I2। इन दिस डायग्राम जो I2 हमारा होगा, देखो इसमें I2 जा रहा है तो वही हमारा IN होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जो हमारा I2 है वही हमारा IN होगा। यहां लिखेंगे IN दैट इज इक्वल टू I2 दैट इज 1.276 एम्पियर। वहां IN क्या था, बीच में था, इसलिए I1 माइनस I2, ये नहीं कि दोनों को माइनस करके तब IN लिखेंगे, नो। यहां पे डायग्राम में देखेंगे, इसमें होता है IN, फिर उसको सॉल्व करें तब अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे यहाँ है तो I2 जो है हमारा IN के इक्वल है, वही करंट होगा, तो IN हमारा होगा। देखिए स्टेप 2। अब स्टेप थर्ड में टू फाइंड द ओपन सर्किट रेसिस्टेंस। स्टेप 2 टू फाइंड द ओपन सर्किट रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB। स्टेप थर्ड, ओपन सर्किट एंड ऑल एनर्जी सोर्स आर डीएक्टिव, दैट मीन्स वोल्टेज को शॉर्ट कर दिए, 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 7 है एंड दिस इज A एंड B टर्मिनल। इसके अक्रॉस RAB दैट इज RN। तो हमने पहले भी बताया जैसी रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही पकड़ रखे हैं तो इसके अपोजिट से सॉल्व करना स्टार्ट करते। ये दोनों किस में पैरेलल है, ये नहीं गलती करेंगे ये पैरेलल में फिर ना हो, क्योंकि यहाँ आप पकड़ रखे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये दोनों पैरेलल है ही पैरेलल और इसके साथ ये सीरीज। तो 6 into 4 हमने बताया था, जो भी रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सपोज दिस इज R1 दिस इज R2, 6 into 4 24 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2.4 और यहाँ पे कितना है 7 एंड A और B। आप ये इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी के अक्रॉस। अब दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में, ऐसे समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो कितना हो गया RN इक्वल टू 7 प्लस 2.4 दैट इज 9.4 ऐसे थर्ड भी हो गया। स्टेप फोर्थ में ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। स्टेप फोर्थ में ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑलरेडी हम लोग IN की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। दिस इज योर IN that is IN equal to 1.276 ampere and here RN that is 9.4 ohms and A and B कितना लोड है हमारे पास 12 ohms। स्टेप फिफ्थ में IL equal to 1.276 into 9.4 डिवाइड बाय 9.4 प्लस 12 दैट इज IL इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, दिमाग नहीं लगाएंगे, जब भी कैलकुलेशन होगा कैलकुलेटर से करेंगे। तो 1.276 इंटू 9.4 11.994 divided by 21.4 तो 21.4 divided by आंसर 11.94 divided by 21.4 0.55 एम्पियर।
यहाँ फाइनल में जब आंसर जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे I 12 ohms इक्वल टू 0.55 एम्पियर, और ऐसे ब्लॉक में ऐसे रखेंगे, देन लिखेंगे ANS 3 लाइन दे के डॉट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वन मोर प्रॉब्लम, वन या टू मोर प्रॉब्लम। तो फाइंड द करेंट। Example number 3. Example number 3. Find the current in 6 ohms. Find the current in 6 ohms by Norton's theorem. Okay. Find the current in 6 ohms. तो 6 ohms यहां भी है। यहां भी 6 ohms है, दो जगह 6 ohms है, लेकिन ये भी टर्मिनल मेंशन है, दैट मीन्स दिस इज योर लोड। और यहां पे 6 वोल्ट -2 प्लस यहां पे 15 वोल्ट। ठीक है, 3 6 4। ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड द करंट इन 6 ohms, लेकिन लोड मेंशन है ए और बी, इसलिए इसमें ये नहीं कि ये, क्योंकि टर्मिनल यहां मेंशन है, ये ध्यान देना है, यहां पे टर्मिनल मार्क किया हुआ है ए एंड बी। ओके, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में रिमूव द 6 ohms। तो -2 प्लस 6 वोल्ट, 6 3 15 वोल्ट, और यहां पे 4, और ए और बी को शॉर्ट कर देंगे। सिमिलरली यहां पे हम लोग ले लेंगे I1, दिस इज योर I1, दिस इज योर I2। अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, सेम प्रोसीजर। लूप फर्स्ट में जाएंगे, लूप फर्स्ट क्या लिखेंगे? 6 माइनस 6I1 माइनस 3I1 माइनस I2 माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां से ऐसे चले, यहां पे पहुंच गए। रिराइट दिस इक्वेशन। तो 6 में से 9 गया, कितना बचा हमारा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 15 और यहाँ प्लस में है, तो यहाँ इधर साइड ले गए तो 9 हो गया। अब ये 3 और 6 कितना हो गया? -9I1 प्लस 3I2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली लूप 2 में अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 15 माइनस 3I2 माइनस I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया? रिराइट दिस इक्वेशन। 3I1 माइनस प्लस 3I1, और यहां पे 4 प्लस 3 7I2 इक्वल टू -15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से कैलकुलेटर लेंगे हम लोग, 2 अननोन है, 2 को दबा देंगे, तो -9 3 9, दूसरा 3 -7 -15। तो I1 इक्वल टू -0.33 एम्पियर, एंड I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। I2 इक्वल टू 2 एम्पियर।
In this diagram, here is the IN, that is I2 equal to IN. यहाँ लिखेंगे IN equal to I2 equal to 2 एम्पियर, नॉट I1 माइनस I2, गलती से नहीं। देखो ये I2 जो है वही हमारा IN के इक्वल है, क्योंकि वही जा रहा है। एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट कितना आएगा? स्टेप थर्ड में जितने वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर दिए 6, 3 और यहाँ पे 4, ए और बी। कितना होगा आर एन? ये दोनों पैरेलल, 6 इंटू 3, 18 डिवाइड बाय 9, 2 प्लस 4 6, दैट इज आर एन इक्वल टू 6 ओम। क्योंकि ये 2 हो गया और इसके साथ ये सीरीज में 6 ओम। एंड ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। यहाँ पे हम लोग आई एन 2 एम्पियर 6 ohms और लोड हमारे पास कितना है? 6 है, ए और बी में। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लोड करंट? हियर IL, IL इक्वल टू टोटल करंट 2 इंटू अपोजिट 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 प्लस 6, 12 डिवाइड बाय 12, that is 1 ampere. Okay. Next, one more problem. Find the current in 25 ohms resistance. Five, 10, 20. तो 5, 10 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 20 माइनस 2 प्लस यहाँ 30 वोल्ट। ठीक है, और दिस इज योर O and this is your P. Here is connected, that is load 25 ohms. Important question, that is very very important, very very important. Example number 4. Find the current in 25 using Norton theorem. Find I in 25 ohms by Norton's theorem. आया हुआ है यूनिवर्सिटी मेनी टाइम्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? देखने से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट, रिमूव द लोड रेसिस्टेंस, दैट मींस 25 इज योर लोड, तो उसको रिमूव कर देंगे हम लोग। ठीक है, एंड देन O और P मार्क किया हुआ है टर्मिनल, ये नहीं कि ए बी कर देना। सुनो, कोई भी टर्मिनल है मार्क है। ओके, तो मार्क है ओपी, तो ओपी को शॉर्ट कर देंगे आफ्टर रिमूविंग। तो ये हमारा 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 है। थर्टी वोल्ट, 20 वोल्ट और यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। तो इससे इसको कनेक्ट है, इससे इसको कनेक्ट है।
अब इसको आपने मार्क तो किया हुआ टर्मिनल, इसको शॉर्ट कर दिए, सीधा करेंगे टेढ़ा कोई मतलब नहीं है, O और P इसमें शॉर्ट कर दिए ऐसे ऐसे। इसमें आपको IN फाइंड करना है। तो ये जा रहा है सपोज I1, ये जा रहा है आपका I2 और ये जा रहा है I3। तो लिखेंगे अप्लाई KCL एट O, IN इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अप्लाई KCL एट पॉइंट कौन सा, O, इस वाले पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, दैट मीन्स IN आ रहा है हमारा, जा कौन सा है I1 I2 और I3। तो लिखेंगे IN इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या है, वोल्टेज दिस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, तो 10/5 2 एम्पियर, 10 डिवाइड बाय 5 वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, दिस इज योर करंट। ओके, सिमिलरली I2 20 डिवाइड बाय कितना 10, तो 20/10 2 एम्पियर, प्लस I3 30 डिवाइड बाय कितना, दिस इज योर 20, 30/20 दैट इज 1.5, दैट इज इक्वल टू 5.5, 5.5। दिस इज योर IN। क्लियर, देखो कितना आसान है। अब इसी के अक्रॉस ओपन रिमूविंग द लोड रेसिस्टेंस, OP के अक्रॉस ROP निकालना है, रेसिस्टेंस अक्रॉस O एंड P। जब वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, वो भी आसान है। देखो अभी कैसे करेंगे, इसको हम शॉर्ट कर दिए, सटा दिए इसे, और ये कितना हो गया हमारा 5, और ये हमारा 20, और ये हमारा 10, और ऐसे सटा दिए, ऐसे सटा दिए। ये किससे सटेगा, ये इससे सटेगा, और ये इससे सटेगा। और ये जो टर्मिनल था, दिस इज योर O एंड दिस इज योर P। इसके अक्रॉस ROP, रेसिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो O और P को ऐसे तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो बाहर करके खींच दो पकड़ के, तो तीनों रेसिस्टेंस क्या होगा, सपोज ये एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, तीसरा वायर, तो जैसे ही आप O और P को ऐसे पकड़ के खींच देंगे, तो तीनों किस में हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, तो O और P को बाहर यदि हम लोग कर देते हैं, पहले जी समझ गए। अब O और P को टिल्ट करना है, तो इसी डायग्राम हम टिल्ट करके दिखा रहे हैं कि कैसे टिल्ट करेंगे। इसको O और इसको P, अब ये दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दो, तो ये रोप पहला है सपोज, दूसरा रोप है, और तीसरा, तीनों किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। तो लिखेंगे 1/Rn इक्वल टू 1/Rn, क्योंकि तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा तो वही वाला लगाएंगे फार्मूला, तो 1/10 प्लस 1/5, दिस इज योर 5, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20, दैट इज Rn इक्वल टू 20/7 ohms। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20/7 ohms आएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड करेंट, इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा आएगा, IN हमने फाइंड कर चुका है, IN की वैल्यू कितना आया है 5.5 एम्पियर, और Rn हमारा कितना निकला है 20/7, और O और P नाम देंगे यहाँ पे, O और P, और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड करेंट, कितना आ जाएगा लोड करंट, इस फार्मूला से वही वाला जो हम लोग अभी तक अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे I25 दैट इज IL इक्वल टू टोटल करंट 5.5 इंटू इसका अपोजिट 20/7 डिवाइड बाय 20/7 प्लस
25। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। 20 डिवाइड बाय 7 इंटू 5.5 15.714 डिवाइड बाय 20 बाय 7 प्लस 25 तो 27.857। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15.714 डिवाइड बाय 27.857 that is I-25 ohms equal to 0.564 एम्पियर। यूनिट लिखना जरूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं एम्पियर, ठीक है। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे सब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले नाम, फिर क्या लिखता है एज, देन क्या लिखता है व्हाट इज मेल और फीमेल। तो वो मेल और फीमेल नहीं लिखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं, वैलिड नहीं है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट द जीरो नंबर। ओके, तो यूनिट किसी भी एम्पियर जरूर लिखेंगे, वोल्टेज है तो वोल्ट लिखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इतना काफी है नोटन्स पे। ओके, नेक्स्ट लास्ट थ्योरम दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।